Yesterday we saw that we need. Yesterday we did some simple calculation programs. Simple calculation programs. In this we saw that we need few things. We need information, knowledge of few things in our hand. That is, first is what are different data types. What are different data types? Data types that are present in Python. अगर हमें पता होगा कि what are the different data types, float, int, character, this and that, then we will have more power. Then we can play more with the Python programming. Then we need this information about what are the different data types available in Python programming. Then we need to know what are the different operators that we have. What are the different operators available with Python? Different operators, plus, minus, divide, multiply. There are multiple other operators that we get. We will discuss those, after which we will have more power and more flexibility to design our computer programs. So these two things are important. Other things are also needed, but today we will be discussing only about these two things. What are the different data types that we are having with us? So handout में क्या-क्या है? So let us start with the data types. Different data types that we have. कौन से है भाई? In numbers, we have multiple. To represent numbers, multiple are there. Integer types, for example, 10, 20, 1, 2, minus 3, which are integer type. Then we have which represents real numbers, for example 0.55, 1.25, 3, something like that. Then we have डबल भी है क्या उसमें हैंडआउट में? अरे तुक्के मत मारो यार, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये ऐसे घुमा दूंगा किसने गलत जवाब दिया। बताओ, अरे तुक्के मत मारो भाई, हैंड आउट खोल दो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस कोर्स में वी विल नॉट डील विद दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या टाइप के होते हैं? रियल प्लस इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? 3 प्लस 2j, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा सा है। So we have numerical types. In numerical types, some of the examples are these 3. कुछ आपने इंफॉर्मेशन लेनी है जो पॉइंट्स के अंदर आ रही है तो आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज करोगे। कुछ इंफॉर्मेशन है जो नंबर की फॉर्म में ही आएगी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी पर्टिकुलर बैच। पॉइंट्स में तो नहीं हो सकते ना, क्या हो सकते हैं? जैसे ये आधा आधा बैठा हुआ है क्लास में, शरीर है यहाँ है, आत्मा कहीं और है। नहीं, पॉइंट में होगी ना। 50-50% थे, शरीर का है 100% है। शरीर तो 100% है, आत्मा दोनों ही। लास्ट लाइन रिपीट करो।
ना ना बेचारा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। क्या क्या कह रहे थे? हाँ, अच्छा, आप और नेक्स्ट डेटा टाइप्स आफ्टर द नंबर्स हैं? कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं है क्या? सीक्वेंस के बाद ये स्ट्रिंग्स वगैरह किस में आएगा? सीक्वेंस में ही डाल रखेगा। In the sequences are very much useful because generally the data set is in a sequence that we have. For example, in terms of biotechnology, our genotype is a sequence of ATGC. So the sequence of this ATGC is generally represented as string ATGC and so on. तो आपका जो जनरली जो सीक्वेंसिंग का जो आउटपुट होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग स्टोर्ड इन अ फाइल. Then, for example, another example is whenever you are getting a data from any sensor. इंजीनियरिंग वाले सेंसर्स के साथ काफी काम करते हैं. Let us say you are receiving some weather data with the interval of, let us say, 1 hour. So after every 1 hour you are getting one data point. That thing also you will get in sequence. जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर लेते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस, देन 21, 22 डिग्री सेल्सियस पॉइंट्स में रहेगा, दिस एंड दैट. सो दिस इज, ये लिस्ट रहती है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिस्ट. वी विल डू good number of programs corresponding to each of these types. Strings के भी अच्छे खासे करेंगे and list के भी we will do few programs. और sequence में क्या क्या चीज है? टपल और टपल क्या? एरे नहीं, लिस्ट होगी ना. टपल, फिर सेट. सेट सेपरेट कैसे है? सेट इसलिए सेपरेट है बिकॉज इन सेट्स सीक्वेंस इज जनरली नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ऑल्दो रखा तो सीक्वेंस ही हुआ है, बट एज वी नो कि वेक्टर और जो सेट में डिफरेंस है मैथमेटिक्स में, that kind of difference is between list and a set. Here in list the arrangement is, कहने को the arrangement is organized arrangement, and in set it is unorganized arrangement. Unorganized arrangement कहने को अरेंजमेंट. सेट्स के साथ जो हम जैसे नॉर्मल सेट के साथ कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट वगैरह, इन सेट फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ए सेट ऑफ सम स्टूडेंट्स which are present in this class. This is a set of students, student number A, B, C, D and so on, which are present in this class, and another set of students which consist of all the, let us say, third year BTech students. There is another set A, B, something. Then we can perform, this is set 1, set 2, operations like set 1 minus set 2, which will give us the
समथिंग वैसे S2 माइनस S1 अगर करेंगे देन वी विल गेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर नॉट अटेंडिंग दिस क्लास, दिस एंड दैट, जो भी सेट के साथ ऑपरेशंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ये वो जो भी है, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं सेट का माइनस ये वो, दैट वी कैन डू विद दीज थिंग्स. वी विल ऑल्सो डू सम प्रोग्राम्स विद दिस डेटा टाइप. और कौन से हैं? बूलियन. बूलियन is one of the most important data type possibly used in many situations. Any variable which is of Boolean type will have only two values, either true or false. For example, if any variable is of int type, integer type, then theoretically speaking, the range is minus infinite, this, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, plus infinite. This is the range. Theoretically speaking, असल में ये रेंज नहीं होती, समझ रहे हो? अगर कोई इंटीजर है वेरिएबल तो थ्योरेटिकली उसमें इतनी रेंज है, हालांकि कुछ रेंज बीच में इतनी ही होती है, जो भी अलग बात है. ये है, इसमें थ्योरेटिकली बोले तो इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं. बट वेन एवर अ वेरिएबल इज ऑफ बुलियन टाइप, ओनली टू वैल्यूज कैन कम इन इट, आइदर ट्रू और फॉल्स. Why we use this boolean? Generally for defining conditions, this boolean data type is used. A condition is true or false. For example, I want to know if the total students in this batch, total students, अरे कुछ ले लो यार ठंडा मीठा, वो एल्कोहल वाला तो आया नहीं आज. वो कहाँ गया? कल भी नहीं है. हाँ, निकाल रहे होगा कुछ? नहीं से पानी वाला. अच्छा, पानी से क्या होगा भाई का? वो तो अपने निकालना. चलो, पानी भी मिक्स कर लेना चाहिए उस जैसे में. देखो नहीं करता ना मिक्स. क्या कहाँ चीज चल रही थी? हाँ, कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से if we have a variable in which we have the total number of students, I am writing number of students. This is one variable which is having the amount of total number of students. If it is greater than, let us say, 10, this becomes a condition. The output of this thing is in Boolean form, which is either true or false, depending on this value of this number of students. So अगर मैं ये चीज number of students, I can put it in some variable b equals to this. तो ये b एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर वैल्यू विल कम आइदर ट्रू और फॉल्स. क्योंकि इंट के अंदर तो आपने देखा था ना, i इक्वल्स टू 10 ऐसे जल गई इंट के अंदर. फ्लोट के अंदर लेटर से j इक्वल्स टू 2.5, ये फ्लोटिंग पॉइंट में डल गई. बुलियन के अंदर ऐसे डलेगी.
आगे कौन सा है? आगे से नन मैपिंग है। मैपिंग और नन मैपिंग दोनों एक मैपिंग में डिक्शनरी आती है क्या? हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद दी डिक्शनरी। इसके भी प्रोग्राम्स अलग से होंगे, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। जनरली डिक्शनरी का यूज क्यों हुआ? हैशिंग के लिए, हैश मैपिंग, हैशिंग। इस पे आगे डिटेल में कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, बट फॉर इंट्रोडक्टरी पार्ट, सपोज आई वांट टू I have a database of students where I have roll number, where I have name, let us say height, address। ये स्टूडेंट का डेटाबेस है मेरे पास, रोल नंबर, नेम, हाइट और एड्रेस। जनरली व्हाट आई वांट टू डू इज दैट इन मेनी केसेस मुझे इस डेटाबेस के अंदर सर्चिंग लगानी पड़ती है। इन मेनी केसेस, इन एनी टाइप ऑफ डेटाबेस वी हैव टू परफॉर्म सर्चिंग। अब सर्च कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू सर्च फॉर ए पर्टिकुलर रोल नंबर या पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर ईयर ऑफ एडमिशन, तो मैं क्या करूंगा? इस डेटाबेस में जाऊंगा, मैं एक एक रो को, एक एक रिकॉर्ड को चेक करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मेरे को किसी रोल नंबर के बेस पे सर्च करना है, एंड आई हैव लेट अस से 10,000 स्टूडेंट्स, मुझे रोल नंबर के बेस पे सर्च करना है इफ पर्टिकुलर रोल नंबर इज प्रेजेंट हियर और नॉट। आई वांट टू रिट्रीव इट्स इंफॉर्मेशन, कि मुझे इस रोल नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो थ्रू ऑल दी एग्जिस्टिंग रोल नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन माई डेटाबेस। चेक करूंगा कि हाँ भाई, जो मेरा पर्टिकुलर रोल नंबर है जिसको मैंने सर्च करना है, जिसको मुझे सर्च करना है, वो कौन से वाला है। हर एक के पास जा जाके सर्च करूंगा, और जो मैच कर जाएगा वो मैं आगे जिसको बोलते हैं रिट्रीव कर दूंगा। जनरली ये प्रोसेस रहता है, लॉजिकल भी है, नहीं क्या? अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आप एक एक देखोगे, पढ़ोगे। डिक्शनरी या हैशिंग से क्या कर सकते हैं? दिस सर्चिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। सर्चिंग टाइम इज वेरी मच रिड्यूस्ड। जनरली इसका कॉन्सेप्ट इसलिए आया था। तो इसमें क्या रहता है? जिस चीज पे आपको सर्च करना है वो है आपकी की। फॉर एग्जाम्पल, यहां हमने रोल नंबर सर्च करना है, तो रोल नंबर हमारा की हो गया, और जो कंटेंट हमारे की के कोरस्पॉन्डिंग है उसको बोलते हैं वैल्यू। की के बेस पे हमें सर्च करके उसकी वैल्यू निकाल दो। आगे कॉन्सेप्ट आएगा ये। वी विल डू मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अभी के लिए यही है कि सर्चिंग टाइम कम कर देता है। देयर आर टू कंपोनेंट्स इन एवरी डिक्शनरी, वन इज की, वन इज वैल्यू। द सर्चिंग इज डन बेस्ड ऑन दी कीज। पर्टिकुलर सेट ऑफ कीज के अंदर हमें सर्च करना है विद लीस्ट सर्चिंग टाइम। आगे क्या है? नन। सेट में एक टाइप बचा है। क्या? फ्रोजन सेट।
वो देख लेना, वो इम्यूटेबल वाला ही सिस्टम है क्या उसमें? देख लेना, नन भी देख लेना। इम्यूटेबिलिटी सर्च करना खुद से, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल। सर्च इट yourself, which are immutable data types। और नन का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, नन डेटा टाइप, जिसका कोई डेटा टाइप ही नहीं है, अनाथ फॉर द टाइम बीइंग। नहीं, या कुछ है इसका, फिर ठीक है। Many times we should return, means the output should be something like the empty set। जैसे empty set होता है, for the sake of the communication we need to give something for the sake of the communication, but there is no information to give। In those kind of situations, none data type is used। हो गया क्या? आगे बताओ। टाइप कन्वर्जन। थोड़ा सा ये बता देता हूं, इंटीजर का बता दिया था, स्ट्रिंग का नहीं बताया था। For example, if I write I equals to 10, by default I नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें वैल्यू आएगी 10। by default इसको असाइन हो जाएगा कि भैया ये इंटीजर है। After that, if I write I equals to 2.5, then the value of 2.5 will go here and the data type will be float। If I write I equals to, in double quotes, if I write something, for example Python, डबल कोट्स का एक ही कैरेक्टर होता है, then this Python string will go into I variable and it will be a string type। Either we can use double quotes both side, or we can also use a single quotes Python। This will have same effect। For now on you can think that this can be used interchangeably। जो आपको मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखना है, किसी वेरिएबल के अंदर कोई सेंटेंस डालना है, तो आई कैन डू दिस। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस इक्वल्स टू हेलो हाउ आर यू, ऐसे। ये कंटिन्यूएशन में है, सो ये दिस विल क्रिएट a new variable which name will be sentence and it will have this string in it, hello how are you। remember that it is enclosed in double quotes, either double quotes or single quotes। mixture नहीं चलेगा, start single से कर लिया and double से ये नहीं चलेगा। तो हाँ, अब क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव आई इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर मैं 25 लिख देता हूं। इफ आई डू दिस थिंग, आई इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर 25, देन द 25 स्ट्रिंग वैल्यू विल गो इनटू दिस वेरिएबल आई। मतलब कि ये इसको एज ए सेंटेंस स्ट्रिंग लेगा। वाई? बिकॉज इट इज इन डबल कोट्स। बट आई वांट
in many places we want to convert the string form into either integer or some other, then what we use, equals to int, ये फंक्शन दे दिया डबल कोट्स के अंदर 25. What this will say is that the data we have is of string type, but convert it into integer type and put it into the I variable. ऐसी चीज आपने पहले कभी देखी हुई है? Have you seen this? टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको, टाइप कास्टिंग ही नाम है. हैव यू डन दिस, सीन दिस बिफोर? कहां देखा? सपनों में? पाइथन क्लास में? हाँ, जो भी बोल रहे रिकॉर्ड हो रहा है. बताओ डॉक्टर साहब, पंगे ना लेंगे इनसे? अरे म्यूट कर देंगे. नहीं क्या भाई? नहीं करना, ऐसी जाने दें. पब्लिक डोमेन में एल्कोहल वाली बातें. बताओ भाई, टाइप कास्ट किया हुआ है तुमने? क्या, किसको किया? जनरली जो क्या कहते हैं इंटीजर्स फ्लोट में इंटीजर्स में जब क्या कहते हैं वो रेंज में जरूरत पड़ती है. कल हमने एक लाइन लिखी थी एक कोड में, लेंथ इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर लेंथ. This we wrote yesterday. उसमें ये हो रहा था, the first step was this message was getting displayed. Message displayed. ये मैसेज डिस्प्ले हुआ था. मैसेज डिस्प्ले होने के बाद वी हैड, स्क्रीन के ऊपर हमारे एक इनपुट बॉक्स आता था, वो इसका काम था. इनपुट का जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स था, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, उस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ टाइप करते थे. फॉर एग्जांपल हमने टाइप कर दिया 10. वो जो समझता था उसको, वो ये समझता था डबल कोट्स के अंदर. What the system is being designed is whatever you get from the input function which we type in the text box should be considered as a string. In that case, we need to do the type casting to convert this into floating point or integer. तो इसको 10.0 कन्वर्ट यहां से होता था. और देन आफ्टर दैट दिस वैल्यू जो हमारे लेंथ के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू चली जाती थी. सो yesterday also we did use the typecast function. If you want to consider this value as integer, then in this float place you can write as int. But because the length and this and that can be in real number form, that is why we were using this float. आगे बताओ क्या है? ऑपरेटर से
पौने को बेटा और क्या करना करवा दे। नेक्स्ट वो हैंड आउट स्टार्ट करवा दे नेक्स्ट तो इसकी प्रैक्टिस कराओ ना। हैं। हाँ वो इसके साथ में ही है, जो ये ऑपरेटर के बाद ही होंगे। खोलो भाई, नेक्स्ट हैंड आउट क्या है? Operators. क्या है? Arithmetic operators. So until this point, we discussed few of the most common data types that we can use. Probably we will use throughout this series of lectures. इसमें हम ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटा टाइप्स यूज करेंगे. Initially we will work with only integer and float for some time, then we will switch to strings and this and that. So now let us start with what are the different operators or different type of operators that we have and the operations that we can perform on the values that we have in our data variables. तो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? पहले न्यूमेरिकल होंगे, Arithmetic. अरिथमेटिक. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एग्जांपल बताओ. एडिशन. एडिशन you have done before, और Multiplication. मल्टीप्लिकेशन also done. Subtraction. ये और Division. डिवीजन और Floor division. फ्लोर डिवीजन और हैं Modulus. मॉड्यूलस और Exponent. एक्सपोनेंस. मतलब समझ में आ गया इनका है भाई? किसका नहीं आया? फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन का एग्जांपल बता देता हूं. जैसे 7 डिवाइड बाय 2, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं 3.5 आता है. फ्लोर फंक्शन पता है? मैथ्स में एक फ्लोर फंक्शन होता है 3. फॉर एग्जांपल 3.5 फ्लोर इक्वल्स टू 3. मतलब कि क्या है कि ये डॉट के बाद वाली वैल्यू उड़ जाती है. ये मान लो उससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू शो हो जाती है. उसके साथ ही सूर्य एक और बार बता देता हूं, इसमें नहीं है, एक सीलिंग फंक्शन भी होता है. 3.5 ऐसा दिखता है, ये आ जाती है 4. मैथ्स में होता है. Significant figure वाला. राउंड ऑफ अलग चीज होती है, राउंड ऑफ अलग चीज होती है. ये तो आपका अगर 3.1 भी होएगा, उसकी सीलिंग करोगे तो भी 4 निकलेगा. 3.1 की सीलिंग भी आपका 4 आएगा. और 3.9 का भी फ्लोर करोगे तो 3 आएगा. सो इसका आउटपुट अगर मैं ऐसे लिखूं i इक्वल्स टू ये, तो i के अंदर वैल्यू जाएगी 3. फ्लोर डिवीजन में अगर 3.8 जाए तो वो 3 होगा. 3 होगा. बाकी ट्राई करके देख लेना, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ. नहीं बोल सकता मैं गलत. नहीं सही है. गलत आप बोल सकते हो. अच्छा वेरी गुड. चलो शुक्र है नहीं बोला सर. आप ज्यादातर जो बोले वो गलत ही है. अच्छा क्या चीज चल रही थी? हाँ हो गया क्या? फिर सारे समझ में आ गए? बाकी मॉड्यूलस, पावर फंक्शन, डबल स्टार वाला है. फिर आगे बताओ क्या है नेक्स्ट टाइप ऑफ? Comparison operator. कंपैरिजन. कंपैरिजन करनी अच्छी चीज नहीं है, कंपटीशन खराब होता है.
नहीं सर अच्छा होता कंपैरिजन हर जगह नहीं। कंपटीशन इज बैड फॉर सोसाइटी। नहीं सर अच्छा होता है। नहीं अच्छा होता है क्या सूर्या भाई? कंपैरिजन इज बैड फॉर सोसाइटी। बैड है या अच्छा है? तो फिर ये नहीं पढ़े अपने, स्किप कर देते हैं। है भाई अपूर्व? बढ़िया कंपेयर होता है सर। बढ़िया होता है तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही होगा भाई। 9.5 है ना चल रही तुम्हारी, 9.7 चल रही है क्या? क्या? नहीं मेरी तो नहीं है, तो किसकी है फिर? किसी की नहीं है हमारे बैच में 9.7 किसी की नहीं है। 8 के ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। 800 850 ऊपर किसी की नहीं है। 8.5 तक कौन है? 8.5 तक नहीं, 8 में ही मेरी 8.3 8.4 है। दुख। God is unfair. Life is unfair. That is why we question the existence of God. नहीं सूर्या भाई, तभी तो तुम हैकर बने हो। तुम्हारे साथ भी गलत हुआ ना। बैकग्राउंड में ऐसी कहानी होती है नहीं क्या? क्या सर? वो विजिलेंटी हीरो के वो मैं सर कुछ को ऐसे पसंद पता करता हूँ। ऐसे शॉक कर शॉक। शॉक क्या है? means you do not question the existence of God. हैं? मैं मानते ही नहीं। ये हमारे वाले तो करते हैं क्वेश्चन। सर मेरा करते सिंपल मानो ही मत, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हैं सूर्या तुम बताओ, भगवान होते हैं कि क्वेश्चन है कि नहीं है? सर ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। अपने अपने कंट्रोवर्सी मचानी है। अरे मैं वीडियो ये म्यूट कर दूंगा। मतलब सर डिपेंड करता है मतलब लोग किस रिस्पेक्ट में सोचते हैं। फेथ की बात है। तो ये कंपैरिजन वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। कंपैरिजन स्टडी सोसाइटी में स्टडी जो यार अपने सामने आएगी वो रियल लाइफ में तो आ ही जाएगी। अब जैसे मैं कंपेयर करता हूँ कि वैसे तुम सारे एक बराबर ही हो नहीं? ये तो सवाल होता है। तो बताओ भाई कंपैरिजन में पहले क्या चीज है? कंपैरिजन में सब पहली चीज इक्वल टू। अच्छा इसी को जरा एक चीज ये देखो, अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल i इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 2। आउटपुट इन टर्म्स ऑफ लेट अस से फ्लोटिंग पॉइंट की टर्म्स में जाता है। इट गेट्स स्टोर इन i in the either it may be in integer form or floating type of form. With the comparison operators, it is always a Boolean output, either yes or no. So if I say I equals to 10 less than 2, तो इसका आउटपुट जो होगा वो i में जाएगा false. सेम वे वी हैव लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और कौन कौन से हैं? और इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और बस तो समझ गए? इफ 10 इक्वल इक्वल टू 10, इसका आउटपुट क्या रहेगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। समझ गए? अब मैं ये कहता हूं कि 10 नॉट इक्वल टू 10, इसका आउटपुट ट्रू रहेगा या फॉल्स? समझ गए? 10 लेस देन इक्वल टू 10, इसका क्या रहेगा? इसका क्या रहेगा भाई? टेस्ट 10 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू के फॉल्स? ट्रू है। ट्रू कैसे हो गया भैया? लेस देन इक्वल ट्रू होगा। इक्वल टू है तो वो कंडीशन ट्रू है। या तो उससे छोटा या तो वो बराबर है या छोटा है? हैं? सर इसमें और होते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू, तो और में तो ट्रू ही रहेगा इसका। समझ गए? और कौन कौन से हैं? ये आगे यूज आएगा क्योंकि
हाँ, ये मैचिंग करेंगे कंडीशंस वगैरह आगे, इफ एल्स फॉर वगैरह में आएगा। हाँ बताओ क्या आगे। अगला लॉजिकल ऑपरेटर, अच्छा कौन कौन से हैं? एंड और नॉट। एंड और नॉट वाली थ्योरी पढ़ी हुई है क्या तुम लोगों ने? एंड क्या होता है और क्या होता है, नॉट क्या होता है? क्या क्या होता है बताओ, कहाँ पढ़ी है, कौन से सब्जेक्ट में? तुमने पढ़ी हुई है? कहाँ पढ़ी है? ये सेम थ्योरी। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर बेसिकली इसका वी कैन से दी आउटपुट इज बुलियन, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट बुलियन। नेक्स्ट कौन सा था? लॉजिकल ऑपरेटर्स का बेसिकली इनपुट जो है वो बुलियन टाइप में रहेगा जनरली, और आउटपुट भी बुलियन है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही बेसिकली बुलियन ही रहेगा। जैसे अपने वो करते थे 10 इज ग्रेटर देन 2, एंड है ना पहला, एंड 5 लेस देन 3। यहां पे ये लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया, यहां पे कंपैरिजन कर दी। Now what will happen? First this bracket will get executed. इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? तो इस टोटल का आउटपुट इज फॉल्स। जवानी याद आ गई? मैं तो अभी भी जवानी हूँ। बचपन याद आ गया? अब लॉजिक में और क्या क्या है? एंड के बाद और भी समझती हो तुम लोग? उसके बाद नॉट ऑल्सो यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट आगे क्या है भैया नोट्स में? असाइनमेंट। बताओ आगे क्या अगला टॉपिक क्या होता है? असाइनमेंट सर। क्या है असाइनमेंट? असाइनमेंट देंगे नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू प्लस मेरे पास आ जाओ। 50 प्लस क्या है असाइनमेंट? असाइनमेंट तो वही कौन कौन से हैं? इक्वल असाइनमेंट मतलब इक्वल टू, हाँ। इक्वल सिंबल, हाँ एंड सब्ट्रैक्टेड असाइन, मल्टीप्लाइड असाइन। अच्छा 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 अच्छा। असाइनमेंट one we have used is equals to. We have already used, we have seen the use of equals to put a value in some variable. For example, I equals to 10. Then second is अगला कौन सा है भाई? अगला इसके बाद ऐड एंड असाइन plus equals to. So if I write I plus equals to 10, it can be also decoded as I equals to I plus 10. For example, before execution, if we have value 5
After execution, we will have 15. Any doubt? Next operation is subtract assign, subtract and assign. Then multiply, then divide and assign, uh, floor divide and assign, uh, modulus and assign, and exponent and assign. बताओ हैं? शॉर्टकट मार दें, स्किप कर दें? नहीं, हर एक का एग्जांपल दिखाएंगे, वरना ऐसे थोड़ा ना सोओगे तुम क्लास में। नहीं भाई, बताओ आगे क्या है, आगे क्या टॉपिक? बिटवाइज ऑपरेटर। अरे भाई आज ही करवाओगे क्या सारी प्रोग्रामिंग? आपके ऊपर हैं? Next time वही है। है। Next time वही है। अभी अगली क्लास भी तो आनी है तुम्हारी, क्या ही करोगे लंच करके यार? आज लंच नसीब होएगा क्या तुम्हें? आप पार्टी दे देना सर। फिर तो नहीं होएगा लंच नसीब। अच्छा, असाइनमेंट हो गया, फिर उसके बाद बिटवाइज। बिटवाइज। बिटवाइज पहला क्या है, एंड है क्या? फॉर एग्जाम्पल 5 and 3. This is the end. What it will give is 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पता है क्या? 101 1 This means 5. This means 3. बिटवाइज एंड करेंगे तो 1 आंसर आ गया। सही है क्या भाई? सही बात है, गलत बात है? सही बात। तुमने नहीं पढ़े क्या एंड और नॉट? तो फिर बोलो ना। इंजीनियरिंग वालों ने नहीं पढ़े? कौन है इंजीनियरिंग वाले? तुम दो और नहीं पढ़े तुम लोगों ने एंड और नॉट? ओ बोलते क्यों नहीं भैया? वेरी गुड, वेरी गुड। एडिशन नहीं है, लॉजिक गेट है, लॉजिक का फंक्शन है। अगर मुझे एंड करना है बिटवीन टू बूलियन लेट अस से वैल्यूज, आइदर आई कैन हैव ट्रू और फॉल्स, और रिप्रेजेंटेशन की बात है आई कैन हैव 1 and 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन. सो इफ आई वांट टू डू एंड, तो मेरे पास 4 सिचुएशन ही हो सकती है अगर मैं 2 वेरिएबल्स के बीच में एंड परफॉर्म करना चाहूं. देन आई हैव ओनली 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, दैट इज ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. समझ में आई कहानी? इनके बीच में अगर मैं एंड करता हूं तो लेट अस से इसको मैं ट्रू फॉल्स ना लेके मैं एक तरीके से 0 0 लेता हूं. 0 0 0 1 1 0 और 1 1 फॉर द सेक ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. तो इसका जो आउटपुट आएगा एंड करने के बाद वो इसका मल्टीपल है. फॉर एग्जांपल 0 into 0 0 0 0 एंड करने के बाद अब क्या हो रहा है? ये केस देखो, ये वाला केस बन गया. ये वाला केस देखो, ये बन गया. ये वाला केस ये बन गया. तो 0 0, और ये वाला केस ये वाला.
समझ में ही कहानी? 5 इंजीनियरिंग वालों, हाँ 50101 हाँ? 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101। बाइनरी वाला नहीं पता क्या तुम्हें कहानी? इनका क्लास चल रहा है भगवान, ये टॉपिक 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101 होती है। कितने लोगों को नहीं पता यार कैसे निकलती है? सूर्या और तुम लोगों को पता है? तुम कहां पढ़े भाई? क्लास की है तुमने कोई? मैं YouTube पे देख लेना, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर पे से कैसे रिप्रेजेंट करना है, बहुत इजी है। क्लास ली तो थी ना, बस इनकी नहीं थी, आइए सर आएंगे सूर्य उसी बैच का था। बाइनरी मैंने नंबर से कराया था हमने। सेकेंड ईयर की नहीं ली थी क्या वो? हाँ, तो यही तो सेकंड ईयर है। अच्छा Absent था ये। हाँ, तुम्हारी क्लास ली हुई है बाइनरी उसकी। नहीं सर, किसी में नोट्स भी तो शेयर किए थे। शायद लास्ट ईयर हुआ है। नहीं समझ में पढ़ाया है, आइए सर आएंगे क्लास ली थी। आए थे अरे मेरे हॉटस्पॉट से 3 कनेक्टेड डिवाइसेस कौन बता रहा है? आईसीटी के यहाँ एक, बाकी 2 यार तुम लोग मेरा ही नेट चूस लो। ये नहीं, अभी तो इनको पिलाई रहेगी। अभी इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, नहीं करना चाहिए। आईसीटी 201 में हो गया तुम? उसके पहले लेक्चर में डिस्कस हुआ था मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्शन न्यूमेरिकल। नहीं होना चाहिए पहली क्लास में। 17 अक्टूबर को अपने क्लासमेट से पूछना, तुम्हारी क्लास में किया हुआ है। अच्छा अब क्या हो गया? हाँ इंजीनियरिंग वालों, ये तो एंड की कहानी थी। दिस वाज अबाउट द एंड ऑपरेटर। In the case of OR operator, we do the addition generally. So 0, 1, 1 and here we have 1 only. सोचने का वैसे है, अंदर तो कुछ और लॉजिक है इसके। जस्ट फॉर दी सेक ऑफ आवर रिमेम्बरिंग ये बोल रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको ऐड कर दिया। एंड और नॉट में एक ही इनपुट रहता है, एक ही आउटपुट रहता है। We will just complement whatever we are given. समझ गए? अगर ट्रू दिया होगा ट्रू का, नॉट जो होगा फॉल्स। वैसे ही आपके एक्स और भी देख लेना। एक्स नोर होता है क्या? एंड नैंड NAND नैंड और नोर, ये ऑपरेटर्स देख लेना। ऐसा ही इनके लॉजिक है, YouTube पे देख लेना। ये अपने चैनल पे डाल दो वीडियो। क्यों भाई सूर्या? हेलो चैनल, वेलकम टू माय चैनल गाइस। हेलो फ्रेंड्स। अच्छा क्या चीज चल रही थी? बिटवाइज एंड किया है अपनों ने। बिटवाइज करने के लिए ये निशान है एंड का, वहां लॉजिकल करने के लिए AND लिखना पड़ता। अच्छा बिटवाइज में अभी और क्या है? बिटवाइज के बाद लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट।
बिटवाइज वी सॉ एंड और का सिंबल ऐसा है, एंड और नॉट का क्या ऐसा है क्या? नॉट का सर डैश है सर। डैश टाइप सी। हाँ टिल्डे कुछ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? टाइल। देख लेना भाई, नॉट का। और नेक्स्ट क्या है? एंड और नॉट। लेफ्ट कैसा है? डबल वो वाला है क्या? हाँ डबल स्मॉल। इसका एग्जांपल है क्या दिया हुआ? जैसे 5, ये क्या एग्जांपल कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ टाइल। क्या बोलते हैं इसको? ये टाइल, टाइल TILDE। वेव। अच्छा अब ये देख लो भाई, वी हैव अनदर सेट ऑफ bitwise operators which are called as left shift. 5 can be is this in binary representation we have 0 1 0 1. After performing one left shift we have 1 0 1 0. This is the output. समझ गए? तो इसका आउटपुट इधर सरका दिया, एक इधर सरका दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया। So this output is this number is 10 in decimal number system. Same way we have right shift. So for example, this will give us as 101 का मतलब कि 010 टाइप का ही होगा ना। This is represented as 2. ये 2 का होगा। मैंने इसके आगे वाले 0 नहीं लिखे। I have not written these zeros, these, because there is no need. इन वाले 0 का जरूरत नहीं है ना। How many? Because we are going to shift here. Are you getting my point? That is why I only took 3 digits in binary. क्योंकि अपने इधर सरकाना है, इधर सरका गए, ये वाले जो 3 है ये आ गए यहाँ पे, इसको उड़ा दिया। इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में सर ये 1 क्यों लिखा है? ऐसा कुछ है क्या? है ये वहां पे 5 आगे लिखा है। ये तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया ना। अगर एक शिफ्ट करना है, वैसे ही अगर आपने 2 बिट शिफ्ट करनी है तो 5 2 2 बिट की सरक जाएगा, 101 की जगह फिर 001 आ जाएगा, क्योंकि 2 बिट सरका दी। ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, तो ये सरक के यहां आ गया। नहीं भाई, गलत बात है, नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में? देखो 5 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मुझे यहां शिफ्ट करने हैं। अगर मैं 2 बिट शिफ्ट करता हूं तो इसका आउटपुट 0 0, क्योंकि 0 एंटर होंगे, 0 0 1 राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया ना, तो ये वाले मेरे उड़ जाएंगे, ये बिट उड़ गए, और ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। अभी भी नहीं आया?
कौन सा नशा करके आए? हाँ? टेंशन ना लो, मैं म्यूट कर दूंगा। बता दो आजकल कौन सा चल रहा है हॉस्टल में? लेफ्ट शिफ्ट में आपने उल्टा कर दिया। हाँ, लेफ्ट शिफ्ट में उधर की तरफ 0 आगे थे। ये तो राइट शिफ्ट चल रहा है ना, ये तो राइट शिफ्ट चल रहा है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या आएगा? अगर मान लीजिए लेफ्ट शिफ्ट करना हो गया 5 2 करना हो गया, तो मैं ये करूंगा 0 0 1 0 1, ये 5 है, और इधर 2 करूंगा तो 1 0 1 0 0, मतलब कि ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और ये 2 नए ऐड हो गए। इसका नंबर होएगा कोई लंबा चौड़ा ही है। 8 16 16 और 4 शायद 20 होएगा इसका। मेंबरशिप ऑपरेटर। गंदी बातें करवा दो। मेंबरशिप ऑपरेटर सर। क्या है मेंबरशिप? इन द नॉट membership. For example, in multiple cases we have to check if some element is present in our sequence or not. For example, if we have a variable I equals to अपूर्व, यही है क्या स्पेलिंग? नहीं तो फिर नहीं क्या है? APOORP अपूर्व। लेटर से I इक्वल्स टू अपूर्व, I इक्वल्स टू अपूर्व नहीं है? चलो ठीक है यार, बुरा मत मानो। U लेटर से U इक्वल्स टू अपूर्व। हमें ये चेक करना है कि a substring letter say or is present in the string or not. So we can check it using if नहीं करेंगे OR in U। ये क्या बोला है? This will return us true or false if this particular elements are present in this variable or not. We can also write it as OR in अपूर्व। ये चेक कर लेना चला के बाद में। If the particular subset is present in here or not. Similar way, we have a list. Let us say there is a list L equals to, there are some elements. For example, 20, 25, 15, 10. Some list is there. We will do experiments, some this questions on this list also later on. But now to check if the number 25 is present in list L, it will give either true or false. To check the existence or the membership, it is used in and not in. So not in is to check if it is not in present in. It is just the reciprocal. So in or not in. और बताओ क्या बच गया? बस हो गया, छोड़ दें? क्या करोगे यार, आज उपवास सैटरडे का उपवास रखा हो, पता है क्या मिलता है? इसलिए तो रख नहीं रहे।
कोई और हैंडआउट में टॉपिक रह गया है तो बताओ। Yes, sir. आइडेंटिटी क्या है? Is इज और इज दिस ये खुद देख लेना, जो नहीं आता ऐसे बोल देते हैं ना, यूट्यूब पे देख लेना। सूर्या यूट्यूब पे क्या देखोगे? वो कन्वर्ट करते हैं इसी में बुलियन में क्या बोल बाइनरी। इतना शरीफ कहाँ से आ गया यार, रुलाओगे क्या यार तुम मुझे? बताओ भाई, इज किस काम आता है? क्या लिखा हुआ है? सेम मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन। अच्छा, कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता उसके लिए क्या? वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू लाइक दिस, आई इक्वल्स टू 10, j इक्वल्स टू 20, k इक्वल्स टू i प्लस j, प्रिंट k। ये समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइन बाय लाइन पता लग गया क्या हो रहा है यहाँ पे? सूर्या भाई, let us say in my code, if I do not write this line, if I do not write this line and if I execute it, then it will execute this line, but here it will give me error. Here it will give me error. This is not found. Are you getting my point? So to check this exist, if the variable exists or not, this is and is not is used. और बताओ, इज वगैरह ज्यादा यूज नहीं होंगे तुम्हारे कोर्स में तो मुश्किल होगा। और बताओ, खत्म? अब खाना खाने चले? कौन किसको पार्टी दे रहा है? आप सर थोड़ा फिर तो भूखे मरोगे। नहीं, सेकंड ऑप्शन होना था। using these concepts we will start with the, कल है क्या क्लास? परसों है? हाँ मंडे को है ना, मंडे का मैं इंट्रो में भी क्लास है। वो तो ऑनलाइन है। वो ये मिड टर्म वाली कब छुट्टियां चालू करनी है इनकी? वेंसडे से आई गेस, वेंसडे से ना बाकी मीट। कहाँ invitation तो मतलब कि मंडे को क्लास होएगी नहीं? हाँ हमें कुछ सेटअप करना है। मंडे को सबके लिए ठीक है ना? देखने को कितनी आते हैं जिनको आना है वही। ठीक है, मंडे को वी विल यूज दिस नॉलेज जो आज अपनों ने देखा। हाँ 5:30 प्रैक्टिकल अभी दूं क्या यही करने के लिए? नहीं, एक छोटा सा दे दो, असाइनमेंट दे दो। उसी का ऐसे कर लो यार, एक टास्क दे दो। एक टास्क नहीं, कल की, आज की तो क्या ही छुट्टी है, कल की तुम्हारी छुट्टी है, सारे ऑपरेटर्स वगैरह एक बार चला के देख लेना।